Okay, hello everyone. So as we have completed first fifth chapter, and now there is only one topic left, one unit left, which is the pointers in C. Okay, so we are done with the foundation concept, then arrays, data types, उसके बाद functions, methods, packages, and now we have reached to our last unit, that is nothing about the pointers in C, which is very simple topic, and uh, the, the topics covered in those unit is very less as compared to our other units. Okay, so let's start with the concept of C pointers. Okay, so in the last lecture, in the first lecture, and as well as in the last unit, there is a one pointer concept in C, and I told you that whenever we are dealing with the actual pointer chapter, at that time we explore this thing. So as we reached here the pointers in C, so अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले. सो पॉइंटर्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, सो आई टोल्ड यू वन आइडिया अबाउट द वी पॉइंट समथिंग. सपोज if the teacher says that he where is ABC students, so the friend of ABC is pointing towards him. So pointer is doing the same thing as pointing towards the variable, but whenever we are pointing to someone variable, या फिर whenever we in the real world, whenever we point to someone, we point using the pointer scenario, but we actually passing the reference of that pointer, means we actually targeting the address of that variable. Okay, so using the address or reference we can point individual variable. That is all about the pointer concept. देखते हैं उसका एग्जांपल फिर और ये आपको समझ में आएगा. बट द कॉमन थिंग इज we point some variable, we point some constant using the reference या फिर address of that individual variable. That is nothing about the pointers in C. Okay, and okay, so pointers in C are easy and fun to learn. Okay, so some C programming tasks are performed more easily with pointers, and other tasks such as dynamic memory allocation cannot be performed without using pointers. So there are things, there are topics like dynamic memory allocation. हम लोग रैंडमली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं. हाँ, हम लोग टारगेट नहीं कर रहे कि इधर ही स्टोर करना है. सपोज एक MP3 फाइल स्टोर करनी है, सो वी आर डायनेमिकली टारगेटिंग दोस मेमोरी एलोकेशन. सो एट दैट टाइम द थिंग इज वी कैन नॉट डू सच actions, we cannot do such transformations using the pointers. Okay, so it becomes necessary to learn pointers to become a perfect C programmer. means हम लोग ने बहुत सारी चीजें सीख ली, and now we can say that we are kind of not the 100% but kind of C programmer, right? हम लोग अभी प्रोग्राम बना सकते हैं, बट हम लोग फुल स्टॉप नहीं दे सकते ये लेवल पे. as we have studied our first fifth chapter, first fifth unit, so we cannot put the full stop to our journey because pointer do this thing. Because without pointer we cannot say that we are a perfect C programmer. Okay, so let's start learning them in a simple and easy steps. बहुत easy concept है ये. So as you know, every variable is a memory location. वेरिएबल क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था. वेरिएबल क्या है, एक डब्बा है जहाँ पे हम लोग मेमोरी स्टोर करते हैं. कुछ वेरिएबल्स, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. ओके, क्लियर. सो एवरी वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन, मतलब इट इज अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर द memory locations. Okay, where we can store some values. Okay, it is a kind of a database, it works as a database. So and every memory location has its address, और जो memory location है उसे एक address है जो hexadecimal में रहता है. हम लोग ने देखा था कि 0FFFH ऐसा कुछ तो रहेगा, वो hexadecimal digit में उसका एड्रेस रहता है. ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक डब्बा है, एक कंटेनर है जिसमें हम लोग मेमोरी स्टोर कर सकते हैं. एंड मेमोरी लोकेशन इज अबाउट द एड्रेस ऑफ दैट इंडिविजुअल वेरिएबल. क्लियर. जैसे कि इंट a इज इक्वल टू 20. हाँ, तो इंट a क्या हो गया, इंट a मेरा हो गया वेरिएबल, डब्बा एक हो गया, a नाम का डब्बा हो गया जिसमें मैं नंबर स्टोर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इंटीजर बोला है, इंट बोला है.
ओके, और 20 क्या है, उसकी वैल्यू हो गई, मतलब 20 में वहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, और वो कहाँ पे है मेमोरी में, तो उसका 0FFH4 समथिंग उसका एड्रेस रहेगा, ठीक है। सो उसका एड्रेस है, सो which can be accessed using the ampersand operator. So to access this address we can use the ampersand operator in C, okay, which denotes an address in memory. Okay, so यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया उन लोग ने, सब बहुत ही छोटा एग्जांपल है, दो वेरिएबल बनाए var1 और var2, var2 की साइज दी मैंने, var2 एज ए मैंने एरे बनाया, ठीक है। सो उसकी साइज दी मैंने 10। सो दोनों में मैंने क्या किया, प्रिंट एफ, दोनों में प्रिंट एफ किया और एड्रेस ऑफ दिस वैल्यू पास कर दी, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू मैंने पास कर दी। अभी यहाँ पे देखो मैंने इंस्टेड ऑफ परसेंटेज डी आई कैन कॉल एज अ परसेंटेज एक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज डी लिखता तो क्या था, इसकी वैल्यू जो रहती वेरिएबल 1 की मैं वैल्यू इनपुट दे सकता था, तो वेरिएबल 1 की वैल्यू आती और इसमें वेरिएबल 2 की वैल्यू आती जो मैंने वैल्यू दी होती तो, ओके। बट यहाँ पे आई एम राइटिंग instead of percentage d, you can see the difference, I am writing percentage x, so percentage x for hexadecimal values, okay, that denotes the address of the memory। तो यहाँ पे देखो ये एड्रेस है BFFA, ये इतना समझने की जरूरत नहीं है ये क्या है, सिंपली याद रखो कि वो मेमोरी में कहाँ पे जो स्टोर है वो मेमोरी का एड्रेस है, मतलब मदरबोर्ड पे या फिर कहाँ पे जो स्टोर होगा वो हार्ड डिस्क में, वो उसका जहाँ पे स्टोर है वो उसका सिर्फ ये एड्रेस है, ठीक है। क्लियर, ये एड्रेस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओके। देन द नेक्स्ट इज व्हाट आर पॉइंटर्स देन, ओके। सो पॉइंटर इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। सो पॉइंटर क्या बोलने वाला है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, मतलब सपोज मुझे बोला कि मुझे बोला कि आप लोग ने बोला मुझे कि अपना कॉलेज कहाँ पे है, ओके। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने कॉलेज का एड्रेस बोलने वाला हूँ, और आपके तौर से मतलब इन योर पॉइंट ऑफ व्यू I am the pointer, okay। So in your point of view, if I am the pointer who denotes the address of another variable and another variable is our college, so मैं बोला कि आप अपना कॉलेज बोर्डी में, clear, okay, that is the direct address of the memory location, so you can directly access the memory address of, you can directly access the address of the memory location जो है अपना कॉलेज, ठीक है। So like any variable or constant, you must declare a pointer before using it store any variable address. So obviously वो कुछ स्टोर करने के पहले ही हम लोग उसे डिक्लेयर करने वाले, ओके। सो टू डिक्लेयर पॉइंटर इन सी, द जनरल फॉर्म और सिंटैक्स इज, आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप जो इंटीजर कैरेक्टर, ओके। उसके बाद यू हैव टू यूज द एस्ट्रिक ऑपरेटर, एस्ट्रिक मीन्स स्टार, इसे हम लोग एस्ट्रिक बोलेंगे, जैसे कि हम लोग परसेंटेज को मॉड्यूलस बोलते थे वैसे ही स्टार को एस्ट्रिक बोलने वाले, ठीक है। asterisk then variable name, okay। So int star and you can call by name Hardik because you want to access the college address, right, and I am the pointer हार्दिक, मतलब मैंने एक एग्जांपल बोला, आप लोग कुछ भी रख सकते हो, हाँ, दिस इज योर वेरिएबल नेम, क्लियर। सो यहाँ पे देखो द एस्ट्रिक यूज टू डिक्लेयर पॉइंटर इज द सेम एस्ट्रिक यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन, मतलब आप लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए जो यूज करने वाले हो ना, सेम वही सिंबल आपको यहाँ पे यूज करना है जो कीबोर्ड में आपके राइट साइड वाले न्यूमेरिकल पैड में रहता है वो वाला, ओके। सो यहाँ पे देखो उन लोग ने एग्जांपल दिए, इंट स्टार आईपी, इंट स्टार डबल स्टार डीपी, फ्लोट स्टार एफपी, ऐसे आप लोग पॉइंटर बना सकते हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू यूज पॉइंटर। So there are few important questions which we will do with the help of pointers very frequently. First is we define a pointer variable, huh? Then assign the address of a variable to a pointer and finally access the value at the address variable in the pointer variable। पहले क्या किया मैंने, we define a pointer variable, जो मैंने मेरा एग्जांपल बोला था वो याद में रखो। पहले क्या किया, we define a pointer variable, मतलब int star हार्दिक, ओके। ओके, आपको एड्रेस चाहिए ना तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैर स्टार हार्दिक, ओके। उसके बाद असाइन द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू पॉइंटर, सो आप लोग ने मेरा नाम डिक्लेयर किया, उसके बाद क्या होगा, कैर सॉरी हार्दिक है ना अपना पॉइंटर का नाम, सो हार्दिक इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ अभी कटघरा, ठीक है, एड्रेस ऑफ कटघरा, कटघरा इज माई टारगेटेड लोकेशन which I want to get the address of that targeted location, clear, and finally access the value at the address available, और उसके बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी जो एड्रेस ऑफ कटघरा है वो मैं डायरेक्टली एक्सेस करूंगा। दैट इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ simple declaration process of any pointer in C, okay। So this is done by using unary operator star, और ये कैसे परफॉर्म हो रहा है,
सो जो यूनियरी ऑपरेटर है एस्ट्रिक उससे वो परफॉर्म होने वाला है। दैट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लोकेटेड इन द एड्रेस, मतलब वो रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न, स्टार है ना, वैल्यू रिटर्न करेगा ऑब्वियसली, कहाँ पे भी, मतलब कटघरा नाम रिटर्न करेगा, और मैं जैसे ही एड्रेस लिखूंगा सो मैं वहां पे बोर्डी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो स्टार विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, एंड एड्रेस विल, मतलब एम्परसेंड विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। क्लियर? ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल। हेडर फाइल लिखा मैंने, आई राइट हेडर फाइल, ओके। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और वैल्यू है 20। ये कमेंट दिया, देखो कमेंट क्या है, एक्चुअल वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब नॉर्मल हम लोग बनाते हैं ना, वो नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन, नॉर्मल हम लोग ऐसे बनाते हैं। नाउ ऑन द नेक्स्ट लाइन आई एम क्रिएटिंग वन पॉइंटर वेरिएबल, ओके। सो उसके लिए कैसे बनाऊंगा मैं, इंट स्टार आईपी। अभी आईपी के बजाय आप आपका नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, चाहे तो फिर किसी सेलिब्रिटी का नाम लिखो, क्रिकेटर का नाम लिखो, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखो, ओके। अगर आपका कोई एलियन फ्रेंड है उसका नाम लिखो, वॉट एवर। उसके बाद आईपी, हाँ। सो ये आईपी मैंने बनाया वेरिएबल पॉइंट, दिस इज माई नाउ पॉइंटर वेरिएबल, दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल एंड दिस इज माई पॉइंटर वेरिएबल। हाउ आई कैन आइडेंटिफाई दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल, यूजिंग दिस ऑपरेटर, एस्ट्रिक ऑपरेटर, ओके। सो द नेक्स्ट इज आईपी इज इक्वल्स टू, नाउ मैं क्या, मतलब सपोज आपने मेरा नाम बनाया, सो मैं क्या बताने वाला हूँ, कॉलेज का एड्रेस। सो आईपी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल, हाँ। ये अभी मैंने कॉलेज डिक्लेयर किया, सपोज हमारे केस में ये मेरा नाम डिक्लेयर किया। अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, इसका एड्रेस, ओके। सो स्टोर एड्रेस ऑफ वेर इन पॉइंटर वेरिएबल। सो इसमें अभी आईपी में क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल आईपी स्टोर्स द एड्रेस ऑफ वेर, एंड स्टार आईपी विल स्टोर द वैल्यू ऑफ वेर। मतलब ये आईपी में है ना, समथिंग बी एफ 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 ऐसा कुछ तो मिलने वाला है, जो एड्रेस था ना अपना, और ये स्टार आईपी में क्या मिलने वाला है, उसकी वैल्यू 20। क्लियर? सो देखते हैं अभी यहाँ पे, देखो प्रिंट एफ मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ वेर, हाँ मैंने क्या बोला, एड्रेस ऑफ वेर, मतलब जो आईपी है अपना। सो आईपी में क्या है, सो द एड्रेस ऑफ वेर, उसके लिए मैंने किया परसेंटेज एक्स, बिकॉज आई वांट द एड्रेस वैल्यू इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। सो उसके लिए मैंने परसेंटेज एक्स किया, और एड्रेस ऑफ वेर, ओके। सो एड्रेस ऑफ वेर, यहाँ पे देखो बी एफ एफ ए डी आ रहा है, एड्रेस ऑफ वेर। और सेम आफ्टर दैट, अभी एड्रेस ऑफ वेर में ही आईपी की वैल्यू स्टोर है, हाँ। सो मैं नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, एड्रेस स्टोर्ड इन आईपी वेरिएबल, और आईपी मैंने किया, सेम वैल्यू स्टोर है, तो यहाँ पे देखो सेम आउटपुट आ रहा है। और द वैल्यू ऑफ स्टार आईपी, मतलब वैल्यू कितनी है इसके स्टार आईपी की, तो उसके लिए मैंने स्टार आईपी किया, स्टार आईपी को कॉल किया, हाँ। एड्रेस किया तो एड्रेस मिलने वाला है, अभी यही एड्रेस वैल्यू आईपी में स्टोर है, इसीलिए ये भी सेम आ गया। और ये स्टार आईपी में क्या है, स्टार आईपी में इसकी वैल्यू स्टोर है 20 की, ओके। सो वो 20 यहाँ पे जनरेट हो गया। क्लियर? आई होप यू विल गेट द आइडिया ऑफ व्हाट इज पॉइंटर। यहाँ पे देखो नल पॉइंटर हम लोग ने बोला है, नल मतलब क्या, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखो स्टार पीटीआर नल किया, तो पीटीआर की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि उसमें मैंने कुछ भी स्टोर नहीं किया, दैट्स इट, ओके। सो ये ऐसा ये पॉइंटर सिनेरियो है। और नल में उन लोग ने दो और स्टेटमेंट दिए है, इफ पीटीआर अगर मैंने लिखा तो सक्सीड्स इफ पी इज नॉट नल, और अगर ऐसे मैंने लिखा है सो वो क्या है, नल, मतलब नॉट इक्वल टू है, तो वो नॉट इक्वल टू का सिंबल हम लोग एज अ नल कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ, अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो पॉइंटर अरिथमेटिक है, एरे ऑफ पॉइंटर्स है, वो हम लोग देखने वाले। बहुत ही इजी कंसेप्ट है पॉइंटर अरिथमेटिक, मतलब क्या, देर आर 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंटर अरिथमेटिक। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते हम लोग इन द पॉइंटर, सो वी कैन परफॉर्म दिस इंक्रीमेंटेशन, डिक्रीमेंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। उसके बाद हम लोग एरे कर सकते हैं पॉइंटर से, स्ट्रक्चर कर सकते हैं, वो कैसे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, ठीक है। थैंक यू।